Assalamu alaikum. So, welcome back in this video lectures of linear algebra. So today in this lecture we are going to discuss about the linear transformation. So before going to detailed study about the linear transformation, let me give you an example of calculus. We have studied in calculus about the functions. Function, according to the definition of function, a function is said to be a function if it requires an input and after some rule and regulations it provides some output. Suppose we have studied in function is of from a real line to a real line. Okay, so this and a function is defined as f of x equal to x square minus 2. Okay, so in this regard, if we are giving 0 value to this and we get minus 2, so according to the function requires the domain means input x is the value and provides a range, it means provides output y. So according to this, 0 is the domain and that gives the minus 2 value in the range. Okay, so according to this, a function is said to be function provides, according to this function, it requires 0 and having the value of minus 2 is equal to at this defined function. So similarly, focusing on this, we know that this is the any matrix having order 2 by 4 and this is the any matrix having order 4 by 1, 2 by 4 and 4 by 1. We know that a matrix is able to multiply if the number of columns is equal to the number of rows of the second. For example, here we have 2 rows, 4 columns, and here we have 1 column and 4 rows. So 2 by 4 is equal to 4 by 1. So they are able to multiply. So the resultant output, the resultant of this vector is this is the resultant matrix of this result. So 2 by 1 is the order of this matrix. So according to this, what we have done, we have transformed. We have transformed the matrix from this order to this order. This is known as matrix. Similarly, let's focus on another example. So here 4 minus 3 1 3 2 0 5 1 is multiplying with the 1 4 minus 1 3. Okay, so it gives 0 by 0. We already know that this is the order of 2 by 4 and this is the order of 4 by 1. So we have given the 2 by 1 as this is the null matrix. So moving towards the next step, in short, linear transformation may be considered as suppose this is any given dimension. Suppose we know that this is Rn and this is Rn. This is what? Okay. So a transform is defined as any matrix of the m number of dimension. This denotes the number of dimensions of the matrix. Okay, so here is the m dimensions and here is the n dimensions. So it is transforming from m to n. What is transforming? Matrix is transforming by multiplication of a. So here x is multiplying with a and gives the order of b. Suppose if the ax is multiplying with the a and gives the order of b, gives the value b, and 4 is multiplying by a and gives the value 0. So this is what is this? This is transforming. So in general, we know that transformation is given as a multiplied by x, ax. Okay, so here x is known as the image of x. This is what? This is the transformation, is the image of x under the transformation. A is what? A is the transformation
image of x under the transformation. Ax is the image of transformation under x. Image of x under transformation. Once more I am going to repeat this in Urdu. So आज के लेक्चर में हम जो है जो टॉपिक्स सीख रहे हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से सीख रहे हैं. देखें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने कंसीडर करनी है कोई भी फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर करनी है. ठीक है, सपोज कर लें 4 2 -3 0 1 5 3 1. ठीक है, और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1. इसका ऑर्डर क्या है 2/4, इसका ऑर्डर क्या है 4/1. ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये क्या दे रही हैं आप 2/1. ठीक है, ये इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, रो 2 है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं r². ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहे हैं. देखें 4 -3 1 3 2 0 5 1. ये एक दूसरा एग्जांपल है. इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 4 -3 -1 3 और ये रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 0 0. ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑर्डर 2/4 है, ये हमारे पास ऑर्डर है 4/1. तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है 0 0. ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म हो रही है. ऑर्डर क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है, जहाँ आ रहा है R2. ठीक है, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरी चीज़ क्या हो रही है, देखें ये देखें x मल्टीप्लाई हो रहा है a से और दे रहा है b. ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, आउटपुट आ रहा है 0. सपोज कर लें ये अगर जो एलिमेंट्स हैं ये सपोज कर लें ये हैं 4 डायमेंशंस वाले, यानी इस मैट्रिक्स में डायमेंशंस क्या है 4 है. ठीक है, और सपोज कर लें ये है 2. ठीक है, तो ये जो है सेकंड डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, सो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे किसके बराबर है, ax के बराबर है. और ax को क्या आप कहेंगे, इमेज ऑफ x अंडर ट्रांसफॉर्मेशन. ax को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ x अंडर ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, मैं इसको मजीद अगर कंक्लूड करना चाहूँ, ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, फंक्शन में वहाँ पे एक डोमेन होता है, एक रेंज होती है. ठीक है, कुछ हम डोमेन देते हैं, उसकी कुछ पर्टिकुलरली रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, रेंज मिलती है. ठीक है, तो उस रेंज को यानी हर फंक्शन के हवाले से, हर डोमेन के हवाले से एक पर्टिकुलरली रेंज डिफाइंड होती है. सपोज कर लें, सपोज कीजिएगा हमने जो है f(x = x² - 2) के बराबर हमने फंक्शन लिया है. ठीक है, अगर देखें हम 0, अगर डोमेन में से हम 0 देना चाहें तो उसकी रेंज में से क्या वैल्यू आनी चाहिए, -2. तो कहने का मतलब ये है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंपली इसी तरह है कि देखें 0 अगर आप दे रहे हैं तो -2 उसकी वैल्यू डिफाइंड है. ठीक है, मज़ीद हम इसको डिटेल एनालिसिस में जो है मूव करते हैं. सो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा. अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लाइव क्लास में हम जो है इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और इससे वाले से मज़ीद जो आपके क्वेश्चन है वहाँ पे रिजॉल्व किए जाएंगे. So now we are going to further study about the transformation. Okay, about the transformation. So a transformation is a function or rule or mapping. You can say that a transformation is a function or rule or mapping. T from Rn to Rm. From this Rn to Rn. Here Rn is an other type of metric system, other order of metric system, and Rm is in to transform Rn to Rm from n to m, transforming the matrix into n to the m. So is a rule. It is a rule. Basically, rule. It is a function that assigns to each vector x in Rn. From the vector Rn, a vector from the Rn, a vector tx in the x is converting into tx in Rm. So a vector in Rn is x. When it is transformed to the Rm, it is known as tx. The set of Rn is called the domain of T. The set of Rn, all the possible elements in Rn is called the domain of T, and Rm is called the codomain of T. Rm is called the codomain of T. So just like similarly as we studied in the function as ranges, the notation Rn, this is what is this, transformation from n to m.
transformation from n to m indicates that the domain of T is Rn and the codomain is Rn. This is domain and this is codomain. This is domain and this is codomain. And the codomain is Rm. For x in Rn, the x which is in Rn, the vector transformed in Rm is called the image of x under the action of T. Similarly, look at this figure. Now here, what is this? It indicates that x in Rn, the vector tx in Rm is called the image of x. This is the image of x. This is the image of x under the action of T. What is action? This is performing action. The set of all images Tx is called the range of T. The set of all images is called the range of T. Please note this point. The set of all images Tx. Every element from Rn to Rm, all possible elements in the Y, in the transformed X, in the Rn is called the range of T. There is much difference between codomain and range. Codomain might be the subset of range, but the range may not be equal to the codomain. Similarly, such that this is the detailed analysis regarding the codomain, just as transformation belongs to Rm. Transformation such that belongs to Rm if x belongs to Rn, if such that at least x belongs to Rn. So similarly, otherwise you can say that this is the codomain is the subset of range. So we will further analyze these types of problem into further through some examples. We can further calculate these problems through some ideas. So once again, I am going to repeat this in Urdu. ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी फंक्शन है या मैपिंग है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली फंक्शन है या मैपिंग है टी की. ठीक है, जो एक हमारे पास सिस्टम है, एन सिस्टम है, दूसरा है हमारे पास एम सिस्टम है. डायमेंशन मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है? एन है, और दूसरी डायमेंशन क्या है? एम है. ठीक है, ये एक रूल है, ये एक क्या है? फंक्शन है. ये एक रूल है दैट असाइंस टू ईच वेक्टर एक्स इन Rn. यानी जो Rn के अंदर वेक्टर है हमारे पास, वो असाइन करता है अ वेक्टर Tx इन Rm. यानी x को असाइन करता है Tx Rm. यानी जब ये x जो है Rn में है और जब ट्रांसफॉर्म होता है Tx Rm में जाता है तो ये Tx बन जाता है. ठीक है, तो ये सेट है Rn. इसको क्या कहेंगे? Rn वाले पॉइंट्स, Rn वाले एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ T. ये T के डोमेन है. और Rm की जो Rm है उसको क्या कहेंगे आप? कोडोमेन ऑफ T. Rm वाले कोडोमेन ऑफ T है. द नोटेशन जो है हमारे पास, ये जो नोटेशन है हमारे पास, R रियल N टू रियल Rm, यानी इस वाले जो नोटेशन को इसको ये क्या इंडिकेट्स कर रहा है? बेसिकली द डोमेन ऑफ T इज Rn. ये डोमेन है और ये कोडोमेन है. Rm में कोडोमेन है. ठीक है, फॉर x इन Rn, जो x Rn में है, जो वेक्टर है Rm में, इसको क्या कहेंगे? इमेज ऑफ x. यानी इसके अंदर जो हमारे पास जो वेक्टर है x, ठीक है, और इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, किसका एक्शन परफॉर्म हो रहा है? T का एक्शन. किसके अंदर? x के ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? T का. ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, Tx बन रहा है. ठीक है, ये किस उसमें जा रहा है? डायमेंशन में. ये Rn की डायमेंशन में जा रहा है. ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? सिंपली ये जो x है Rn में है और ये वेक्टर Tx है Rm में है, इसको क्या कहेंगे? इमेज ऑफ x. व्हाट इज दिस? इट इज द इमेज ऑफ x. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ T. यहाँ पे T का एक्शन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, इसको आप डोमेन समझते हैं, इसको आपको डोमेन समझते हैं. अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट है. द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ट्रांसफॉर्म T of x is called the range of T.
यानी जितने हमारे पास जो सेट हैं इमेजेस के, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, रेंज ऑफ टी। यानी जितने आपके पास कोडोमेन में पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, रेंज। ठीक है, एक चीज नोट कीजिएगा कि इस सिलसिले में समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पे कह रहा है टी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एम, टी ऑफ एक्स सच दैट बिलोंग्स टू आर एम एट लीस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर एम, या अदरवाइज इट इज अ सबसेट ऑफ आर एम। इसमें कहा गया, क्या कहा गया है कि सिंपली समझाना ये चाह रहा है कि हमारा जो कोडोमेन है वो रेंज भी हो सकता है, रेंज के इक्वल हो सकता है, ठीक है, या रेंज कभी भी कोडोमेन के बराबर नहीं होती। रेंज इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सेट ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन में सिंपली आपके जो वो पॉइंट्स होंगे जो इंडिकेट करते होंगे उसी पर्टिकुलर जो है डायमेंशंस के हवाले से, ठीक है। फर्दर एक चीज नोट कीजिएगा, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। फर्दर हम इसको देखते हैं मजीद, जो हमारे पास आगे एग्जांपल्स करते हैं उसमें आपको मजीद क्लियर होता जाएगा इस सिलसिले में। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ईच एक्स इन आर एन, एनी एलिमेंट एक्स इन आर एन, T of x is computed as ax. Transformation of x is computed as ax, where A is an m by n matrix. Where is A is any m by n matrix, and this is what this defines the P of x is equal to A of x, which is equal to B. Now focus here is m by n is the matrix order of A, and the n by n is any vector whose number of rows are n. Now denote that m is the number of rows of M and n in the number of rows of number of columns of A, which is equal to n by n. One is, we know that any one column is also called the vector. So here the number of rows depends upon the ax of the n. So you can simply say that the whole transformation belongs to Rn. Rn is the dimension of n. Okay. For simplicity, we sometimes denote such a matrix transformation by this form. X is from Ax. X is transformed from the Ax. Observe that the domain of Rn, domain of T is Rn. Rn is the domain. When A has n columns, and the codomain of T is Rm. This is the codomain. This is the domain, this is the codomain. When each column of A has m entries, m is the number of rows. The range of T is set of all linear combinations of the columns of A. The range of T, the elements in the range, which is the range of T, is set of all linear combinations of the columns of A. All possible vectors are combined on a single point. This is linearly combined through some operations. This is known as the range of T is the set of all linear combinations of the columns of A. Because such image of T of x is of the form of Ax. Simply, this is the same technique. T of x is equal to A of x. So this is the whole transformation depends upon the same formula. So we must have to take care in our mind to focus on these strategy to further solve these examples. Simply, this is the actual definition regarding the matrix transformation. So in matrix transformation, we are usually transforming the number of rows and number of columns from one dimension to another dimension, or from n dimensions to m dimensions. So simply, this technique's transformation is similarly equals to the Ax. Ax is, what is this? A is the matrix. A is any augmented matrix having multiplication of x, and which is equal to some other vector B. B is any vector whose number of rows may be n. So further we can understand these examples through some examples of linear algebra.
ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1 3 -1 -3 5 7। यू क्या है हमारे पास? 2 -1। सी क्या है? 2 3 5। और ये डिफाइन किया गया है ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन? 2 से 3 में। यानी हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2 रोज में है, यानी 3 R2 डायमेंशन क्या है? 2 से 3 है। इसको मजीद आप समझिएगा, यानी R2 से R3 में। ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होती है? AX के बराबर होती है। ए आपके पास ये है, X आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट T ऑफ X इक्वल टू AX। यानी T हमारे A क्या है? A हमारे पास 1 3 -1 1 3 -1 -3 5 7 -3 5 7 सेम है। उसके बाद हम X मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें 2 डायमेंशन का कहा गया है, 2 डायमेंशन टू 3। ठीक है, यानी 2 डायमेंशन को हमने कन्वर्ट करना है 3 में, 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 3/2 और इसका 2/1। ठीक है, तो आपके पास किसमें आ रहा है? 3/1 में। वेक्टर किसमें बन रहा है? 3 में, थर्ड में जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी 3 डायमेंशन में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब आपसे कहा गया है फाइंड T ऑफ U, यानी U की जो इमेज है इसमें क्या बनेगी? द इमेज ऑफ U अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। U की कैसी इमेज बनेगी? दूसरा आपसे कहा गया है फाइंड एन X इन R² हुज इमेज अंडर D इज B। आपसे कहा गया है X की वैल्यू फाइंड कीजिएगा R² में, जिसकी इमेज जो है D के अंदर B है। अच्छा, ये B, ये D C जो है ना B है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, B इक्वल टू इसके बराबर है। ठीक है, अंडर T इज B। इज देयर मोर देन X हुज इमेज अंडर T इज B। क्या ऐसे मोर देन X है जिसकी इमेज जो है T आ रही है B में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है B में। डिटरमिन इफ C इज इन द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये पता कीजिएगा क्या C जो है 2 3 5 जो है ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन में है, यानी पूछ रहा है कि ये डोमेन और को डोमेन और रेंज क्या इक्वलिटी आ रही है। ठीक है, इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो देखिएगा, अच्छा सबसे पहले क्या कहा गया है? फाइंड T ऑफ U द इमेज ऑफ U अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले सिमिलरली ये क्या है? x1 -3x2 3x1 + 5x2 -x1 + 7x2। U क्या है हमारे पास? U है 2 और -1। ये हमारे पास किस के बराबर आना चाहिए? इसको आप मजीद हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 माइनस प्लस, ये क्या बनेगा? 6 + 6 - 5 यानी 1 बचा। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया है -2 -7। ठीक है, तो कुछ आपका इस तरह बनेगा 5 1 -9। ठीक है, ये क्या है आपका? 5 1 -9। ठीक है, इसको थोड़ा ग्राफिकली देख लीजिएगा। U जो है आपके पास कुछ इस तरह था, -2 2 -1, यानी ये 0 1 2, ये 2 था। उसके बाद जो है आपके पास -1 पे था। ठीक है, यानी ये 0 ये -1
पॉइंट आपकी कहाँ बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे क्या आ रहा था 2 - 1, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट यू बन रही थी, यू यहाँ पे था, ठीक है, इस पॉइंट पे था, ठीक है। अब पॉइंट ये कहाँ पे होगा, अगर थर्ड टाइम इस डायमेंशंस में देखें, ठीक है, तो हमारे पास देखें ये x1, तो ये x1, ये x2 है, ठीक है। अब देखें 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, x1 x2, ये x3 आपका कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखें सबसे पहले क्या है 5 1, देखिए 0 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। उसके बाद 1 है, ये 1 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद -9 है, ठीक है। तो ये -9 जो है, -9 सिलसिले में यानी x3 का है, ये तो कुछ इस तरह से बनता है 1 2 3 4 5 6 7 -9, ठीक है। तो ये -9 कुछ यहाँ पर बन रहा है। तो आपके पास कुछ पॉइंट इस तरह से आ रही है, यानी रिवर्स पॉइंट भी चले जाए। तो कुछ ये क्या आपके बन रहा है 5 1 -1 -9, ये इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कर ली है, ठीक है। फर्दर पॉइंट लोकेशन है 3 डायमेंशंस के हवाले से, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको मज़ीद हमने प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब हम अपने सेकंड स्टेप्स पे चलते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो तो आप बता दीजिएगा। सेकंड स्टेप्स का कहा गया था आपसे, सेकंड स्टेप में कहा गया था फाइंड nx in R2 whose image under T is P. आपसे कहा गया है x की वैल्यू फाइंड करनी है R2 में, जिसकी इमेज जो है t की जो है वो b के बराबर आनी चाहिए। सो सिंपली हमने क्या करना क्या है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है। ये क्या है 1 3 -1 -3 5 7, ठीक है। उसके बाद क्या है b क्या है आपके पास 2 3 5, ठीक है। तो हमने सिंपली काम इतना ही करना है, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। मज़ीद हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को 0 बनाना होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन कौन से हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जो है R3 माइनस, मैं लिख लेता हूँ R2 माइनस 3R2 3R1 और R1 प्लस R2 R3 प्लस R1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कर रहा हूँ। R2 को मैं जो है 3 से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के -3 से मल्टीप्लाई करा के इसे ऐड कराऊंगा, ठीक है। और जो है 1 को इसके साथ ऐड कराऊंगा, तो हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसा बनेगा 1 -3 2 -3 प्लस 3 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 9 प्लस 5 14, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -6 प्लस 3, ये बन गया -3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको इसके साथ ऐड कराएंगे 1 प्लस का, ये माइनस का, तो ये -1 प्लस 1 0, ठीक है। 7 -3 4 5 -2 3, कुछ आपके पास ऐसा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर क्या है,
इसको हमने 0 बनाना है, ठीक है, इस पोजीशन को 0 बनाना है। तो इस पोजीशन को 0 बनाने के लिए हमने सिंपली ऑपरेशंस अप्लाई करनी है। ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद ऑपरेशंस कौन सी अप्लाई कर रहे हैं हम? ऑपरेशन सिंपली हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे, सपोज कर लें इसको 14 के साथ डिवाइड कर दें, यानी R2 इज मल्टीप्लाई बाय 1/14, ठीक है। तो ये आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 बन जाने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, R3 माइनस 4R2, ये ऑपरेशन अप्लाई करनी है। तो आपके पास कुछ सिस्टम कैसा बनेगा, आपके पास जो सिस्टम बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास जो सिस्टम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। देखिए आप x1 की वैल्यू यहाँ से आपने क्या फाइंड की, x1 आप क्या है 1.5 के बराबर, और x2 क्या है आपका -0.5 के बराबर आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो वेक्टर आ गया x वेक्टर किसके बराबर आ गया 1.5 - 0.5, कुछ इस तरह बन गया, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे आप, f इक्वल टू बी, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बी में, ठीक है, नोट कीजिएगा। एक बार तो आप फिर से मैं समझा रहा हूँ, आपसे कहा गया है फाइंड एन एक्स इन R2, यानी 2 डायमेंशन में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी इमेज क्या है t इज b, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है b अप्लाई हो रही है। तो हमने क्या करना है, b जो हमारे पास गिवन है 2 3 5, इसको हमने टूवर्ड्स इसमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनाना है। उसके बाद डायरेक्टली हमने क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करनी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मजीद रिड्यूस करना है टुवर्ड्स रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, ठीक है। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में हमने यहाँ तक कन्वर्ट किया है। यहाँ तक कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चला है कि x1 की वैल्यू क्या है 1.5, x2 की वैल्यू क्या है -0.5, ठीक है। तो हमारे पास R2 2 डायमेंशन में x की वैल्यू क्या आ गई 1.5 और -0.5, ठीक है। मजीद अब हम थर्ड स्टेप पे मूव कर रहे हैं। इसमें मजीद जो आपकी क्यूरीज है इंशाल्लाह वो ऑनलाइन क्लास में मजीद रिजॉल्व की जाएंगी। आपसे कहा गया है इज देयर मोर देन 1x whose image under t is b, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो t की वैल्यू है b में, ठीक है, इसके लिए हमने मजीद सिंपली जो हमने वैल्यूज फाइंड की उसको मजीद हमने इसी जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है। वो हम किस तरह कर रहे हैं वो हम मजीद आपको इस तरह करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है x1 - 3x2 3x1 + 5x2 - x1 + 7x2, ठीक है। हमने पॉइंट क्या फाइंड किए 1.5 - 0.5, ठीक है। ये पॉइंट फाइंड किए थे हमने, ठीक है।
इसको मज़ीद जो है हम क्या बनाएंगे, इसको हम मज़ीद अगर चेक करना चाहें तो हमारे पास सिस्टम कुछ कैसा बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। ये क्या है हमारा x1 है, ये क्या है हमारा x2 है। x1 की जगह x1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, x2 की जगह x2 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरह बनना चाहिए, इस तरह देखें 1.5 माइनस 3 इंटू माइनस 0.5, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम x1 से। तो ये जो हमारे पास, इसको मज़ीद हम अगर सॉल्व करके देखना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। तो ये हमारे पास जो है अदर जो है x की जो है यानी 3D में अगर इसको मज़ीद जो है हम इसको चेक वेरीफाई करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। इजी है, सिंपल है, ठीक है। आप चेक कीजिएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मज़ीद इस पर क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। हम फोर्थ का मूव कर रहे हैं अभी, ठीक है। जो हमारे पास फोर्थ था, फोर्थ में ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि आपने डिटरमिन करना है जो C है 235 क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सिंपली हमने सॉल्व करना है कि f x को इक्वल टू b, ठीक है। हमने सिंपली क्या करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ b है इसको x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। यानी t ऑफ x को b के लिए सॉल्व करना है, किस तरह, ठीक है। यानी a क्या है हमारे पास, ये कुछ है a हमारे पास 1 3 -1 -3 5 7, ठीक है। अब b क्या है हमारे पास, ठीक है। b हमारे पास कुछ इस तरह है 2 3 5। तो ये हमारे पास सिंपली आगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। सिस्टम की आगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है। इसको हम मज़ीद इक्लॉन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, इसको 0 बनाना होगा, इसको 1 बनाना होगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरह बनेगा 1 0 0 -3 14 4 3 -7 -2 3 -7 -2, ठीक है। सिस्टम इस तरह बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमें मज़ीद इसको जो है यहाँ पे हमने कौन सी ऑपरेशन अप्लाई की है, यहाँ पे हमने ऑपरेशन जो अप्लाई की है वो है R3 - 3 R2 और R3 + R1, ठीक है। इसको हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट इस तरह आ गया, ठीक है। इसको मज़ीद हमने जो है इसको 0 बनाने के लिए, ठीक है, या हमने क्या किया, यहाँ पे रो इंटरचेंज कर ली है, ठीक है। डिवाइड किया है इसको सिंपली नीचे वाले को 1/2 से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सिस्टम जो है इस तरह बन गया है। इसके बाद हमने मज़ीद
जो सिस्टम आ रहा है हमारे पास वो कुछ इस तरह हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन अप्लाई की है वो सिंपली इसको डिवाइड किया हुआ है 2 से, यानी और 2 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है, और 2 हमने 1/2 से डिवाइड किया है। इसमें सिंपली हमने ये जो गिवन मिला उसको हमने मज़ीद इसमें ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास कुछ सिस्टम जो बन गया वो कुछ रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास रिड्यूस इक्लोन फॉर्म कुछ इस तरह बनेगी। इसमें कुछ मिस्टेक्स चेक करने के बाद जो है मज़ीद हम इसको मज़ीद शुरू से करना चाहेंगे। तो डिटरमिन इफ़ सी इज़ इन द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी, यानी पूछ रहा है कि जो रेंज है आपके पास सी की, सी क्या है आपके पास 3 to 5, ठीक है। इसमें आपके पास जो सी है उसको मज़ीद पूछा गया है क्या ये डोमेन और रेंज बराबर है, ठीक है। तो हमने सिंपली डोमेन और रेंज बराबर है या नहीं है चेक करने के लिए क्या किया है, हमारे पास सिंपली हमने ट्रांसफॉर्मेशन को चेक किया है। ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह से चेक करते हैं, देखें ए एक्स इक्वल टू बी। ए हमारे पास क्या है 1 3 -1 -3 5 7, और बी क्या है हमारे पास 3 2 5। अब देखिए हमने इसमें अप्लाई क्या किया है, ठीक है, हमने इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाना होगा, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में बनाना होगा। इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए हमने कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे करनी है इसको 0 बनाने के लिए R2 - 3R1 और इसको ऐड करवाना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह रहेगा R3 + R1, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑपरेशन बना उसका क्या बना 1 -3 + 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 -3 + 3 0 -9 +9 + 5 14। उसके बाद क्या है -9 + 2 -7, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, इसको 0 बनाना है, 1 + 1 -1 0 -3 + 7 4 3 - 5 3 + 5 8 3 + 5 8, ठीक है। तो अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली इसको 0 बनाने के लिए हमने इसको अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको डिवाइड कर दें इसको डिवाइड कर दें 1/14 से, तो हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरह बनेगा 1 - 3 + 3, तो ये 0 1 - 0.5, ठीक है। इसको और ये क्या बनेगा 0 4 8, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है तो हमने ऑपरेशन कौन सी अप्लाई करनी है, इसको ऑपरेशन में लिख लेता हूँ यहाँ पे R3 - 4R2,
ठीक है, R3 माइनस 4R2, ठीक है, 4R2 को मल्टीप्लाई कराना है तो हमारे पास कुछ सिस्टम जो आएगा यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। सिस्टम किस तरह बनेगा, ये 1 माइनस 3 3 0 1 माइनस 0.5, उसके बाद 0 माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2 माइनस 0.5 माइनस 0.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 आएगा, प्लस 2 प्लस 8 10 आएगा आपके पास। तो आपने एक चीज़ नोट कर दी है कि ये क्या 0 इज नॉट, यानी हमारे पास अगर इक्वेशन चेक करना चाहें तो ये कुछ इस तरह बनती है, x2 इक्वल टू माइनस 0.5, x1 क्या है आपके पास माइनस 3, x2 प्लस इक्वल टू 3, ठीक है। और ये 0 इज नॉट इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है, यानी सोल्यूशन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट होता है तो हमारे पास इसमें क्या कहा जाता है कि x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, यानी जो x है वो बिलोंग करता है किस पे, r2 से, ठीक है। सच दैट e ऑफ x इक्वल टू c, यानी c से ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारी बराबर होगी तो ये सच ट्रू करता है, और ट्रू। सिंपली हम अगर अदर वर्ड्स में देखना चाहें तो इसका कहने का मतलब क्या है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। एक मरतबा फिर से रिपीट करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। फोर्थ में आपसे कहा गया था डिटरमिन इफ सी इज इन द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या जो सी है वो ट्रांसफॉर्मेशन में है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में यानी इक्वल टू सी, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया है, जो हमारे पास सी हमारे गिवन है, ठीक है, सी विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, ए की वैल्यू रखी है, इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है, ए के साथ हमने सी रखा है, सी हमारे पास क्या है 3 to 5 रखा है। इसको मजीद इक्लोन फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, इक्लोन फॉर्म में हमारे पास कुछ ये वैल्यू आई, ये जो लास्ट वैल्यू देख रहे हैं ना आप, ठीक है। अगर ऐसी आती है सिस्टम तो सिस्टम ऐसा बन जाता है, ठीक है, सिस्टम ऐसा बन जाता है। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं, जहाँ पे x3 की थर्ड वैल्यू नहीं आ रही, तो उसका मतलब क्या है कि नो सोल्यूशन है, सिस्टम कंसिस्टेंट, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ऐसे सिस्टम में, ऐसा सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है, तो सोल्यूशन तो नहीं होगा। उसमें क्या कहा जाता है कि x जो बिलोंगता है वो सिर्फ 2 डायमेंशन से है, 3 डायमेंशन की ये बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ 2 डायमेंशन को डील कर रहा है x, ठीक है। और x क्या है, अगर 2 डायमेंशन में है तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी c में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंपल वर्ड्स में कहा गया है कि रेंज जो है आपकी कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है आपका, जो R3 जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, R2 से लेके R3 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी हमारी, ठीक है, ये R2 से लेके R3 में। तो मतलब क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी इसकी जो रेंज है इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन इज अ बिगर साइज एंड रेंज इज अ नॉर्मल, इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, ये एक और प्रॉब्लम है, इसमें आपको ए गिवन है 102 -2 1 5 3 -3 6, बी आपके पास क्या है -6 -4 -5। आपसे पूछा गया है क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स, ठीक है। एक पूछा गया है सेटिस्फाई कर रही है, दूसरा पूछा गया है क्या इस सच एन एक्स इज यूनिक, क्या एक्स जो है यूनिक है, यानी क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी किस तरह बनेगी, ठीक है।
वो हमारे पास आगमेंटेड मैट्रिक्स हम इस तरह बनाते हैं 1 0 2 -2 1 5 3 -3 6, ठीक है, -6 -4 -5, ठीक है, इस तरह बन गया। अब ये इसको हमने 0 बनाना है, ठीक है, तो हमने कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करनी है, -2 हमारे पास कुछ सिस्टम जो है बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा 1 -2 3 -6 0 1 -3 -4, अच्छा -2 + 2 0 -4 4 + 5 9, ठीक है, उसके बाद -3 -6 + 6 0, ठीक है, उसके बाद क्या है -6 + 6 के बाद 0 है, ठीक है, उसके बाद क्या है -12 +12 -5 +12 -5 कितने बने 7 बने। उसके बाद हमने इसको 0 बनाना है, ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, ठीक है, इसके लिए इस तरह लिख सकते हैं R3 -9 R2, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह सिस्टम बनेगा 1 -2 3 -6 0 1 -3 -4, उसके बाद 0 -9 +9 0 -3 +27 और जो है 32 36 + 7 बनेंगे हमारे पास 36 + 7 जो ये कुछ बनेंगे हमारे पास 36 + 7 होते हैं 43, कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम बना वो कुछ इस तरह बना 36 यानी जो हमारे पास रिड्यूस इक्लोन फॉर्म कुछ इस तरह आ गई है। इसकी मज़ीद हम अगर इक्वेशन चेक करना चाहें, यानी इतना पॉसिबल है कि ये जो है सोल्यूशन तो यूनिक होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल हमें इतना पता चल रहा है। इसको मज़ीद हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये है x3 27 = 43, x3 की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये किस तरह बनेगा x3 = 43/27 आएगी, ठीक है। अगर x2 की वैल्यू निकालना चाहें तो x2 की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी x2 - 3x3 = -4, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह बनेगी x2 = 3x3 + 4, x3 की वैल्यू हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू कुछ इस तरह आएगी 3 × 43/27 + 4, तो ये हमने कैलकुलेट करके जो है कुछ देखिए तो x3 की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह आ रही है 101 ये कुछ इस तरह आ रही है। इसी की वैल्यू को हमने जो है मज़ीद ऊपर वाली इक्वेशन में रखा है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x1 - 2x2 + 3x3 = -6, x1 की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें -2x2 + 2x2 - 3x3 + 6, तो ये x1 हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। जो x1 की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है दैट इज 18, तो आपका जो है x इज़ यूनिक, x की वैल्यू कुछ आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसको मज़ीद जो है चेक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा खुद से, ये इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मज़ीद ऑनलाइन क्लास में आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार तो आप फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ए आपके पास मैट्रिक्स है ये, बी आपका है ये, ए के हैं 1 0 2 -2 1 5
3 -3 6 -6 -4 -5 आपसे कहा गया है कि आपने x फाइंड करना है, ठीक है, सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रही है, a को रखा, उसके बाद हमने b को रखा, ठीक है। इसकी ओवरऑल देखी तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस आ गए। हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या है, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास x3 एक आ गया x3, ठीक है, और जो है x2 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास x1 है, ठीक है। तीनों सोल्यूशन आ गए। तो देखें एक किसी न किसी पॉइंट पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक यूनिक पॉइंट है, ठीक है। तो सेटिस्फाई भी कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और जो है यूनिक जो है वो सोल्यूशन भी है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, 0 है ये, ठीक है। आपसे कहा गया है जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हो रही है x से, हो रहा है ax से, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है r³ में, x ट्रांसफॉर्म कर रहा है ax में r³ में, ठीक है, 3 डायमेंशन में, onto x1 x2 है। यानी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है सिर्फ x1 और x2 में हो रही है, पर 3 डायमेंशन है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, इसको हमने मज़ीद सेटिस्फाई करने के लिए देखा है कि हमने चेक किया है। देखिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन में किस में कर रहे हैं, 3D कर रहे हैं, x1 x2 x3, ये r³ x1 x2 x3, ठीक है। इसको हम ट्रांसफॉर्म करवाएंगे a से। a क्या है हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब देखें जो नीचे वाला x3 है, ठीक है, ये हम इसको मज़ीद ट्रांसफॉर्म करवाने के बाद चेक कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो x1 x2 आ रहा है, ठीक है। अब इसका सिंपली मतलब क्या है कि ये जो xy हमारे पास 3D प्लेन है, x1 x2 x3, जो पॉइंट जो है वो प्रोजेक्शन कहाँ पे होगी, ये xy प्लेन पे होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो 0 है यानी x3 का कोऑर्डिनेट्स है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमने ये वेरीफाई करने के लिए चेक किया है, ठीक है। इसके साथ आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की। वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास कोई भी दो ax + y है, ठीक है, तो उसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं ax + ay, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी दो प्रॉपर्टीज़ है। एक ये है, अगर आपके पास ax किसके बराबर है, x + y के, तो ये इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहें ax + ay। अगर इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू देखना चाहें, अगर x बिलोंग कर रहा है 3 डायमेंशन में, ठीक है, तो आपके पास t(x + y) = t(x + t(y), ठीक है। अगर देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज 0, ठीक है। इसको 0 के हवाले से ये सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी है, a of rx = r of ax। अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपकी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के बाद मज़ीद उसके बाद फिर a से मल्टीप्लाई हो रही है, ये उसी तरह है कि अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करें उसके बाद ax के बाद, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, सिंपली सेम प्रॉपर्टीज़ है आपकी। तो इसको मज़ीद हम फ्यूचर जो है हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम मज़ीद चेक करेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में अभी हम एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जिसको हम शेयर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन की मज़ीद हम जो डेफिनेशन है या उसका कॉन्सेप्ट है उसको हमने किस तरह समझने की कोशिश की है। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। 2 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डायमेंशन सेम है, 2 डायमेंशन को 2 डायमेंशन से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जो डिफाइन है देखें ट्रांसफॉर्मेशन x1 की, इससे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 0 1 के हवाले से, उसको हम 2 डायमेंशन से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ रिजल्टेंट कुछ बने गए, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी आ रही है x1 + 3 x2, ठीक है। अब देखें इसको अगर ग्राफिकली हम देखना चाहें तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी शेयर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रूव कर रहा है, जो 2D है इसमें कुछ स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रेच है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादातर फिजिक्स में अपीयर होती है, जियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम उसमें स्टडी करते हैं, और क्रिस्टलोग्राफी जो हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी की फील्ड है
उसमें भी हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सो ये है एक, उसको हम मज़ीद जो है इसको शेयर ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ना चाहेंगे अभी, ठीक है। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है या मैपिंग है, ठीक है। टी इज लीनियर। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है अगर देखें टी ऑफ यू प्लस वी, कोई भी दो वेक्टर हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन में है, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह लिखना चाहें कि u की ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद ऐड करना चाहें v की ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो जाएगी फॉर ऑल u v इन द टी डोमेन। जो t हमारे पास डोमेन है उसमें हमारे पास जितने भी u v हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरीके से भी करना, यहाँ से टी यू प्लस टी वी इक्वल टू टी यू प्लस वी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह है जस्ट लाइक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है टी ऑफ सी यू, यानी कोई भी स्केलर है मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर से यू से, ठीक है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, यू की ट्रांसफॉर्मेशन करके उसके साथ स्केलर्स मल्टीप्लाई करवा दें। ये सब जो टी डोमेन में हमारे पास स्केलर हैं यू वी, उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट करनी है, वी नो दैट अ गिवन मैट्रिक्स है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m बाय n, जो सेटिस्फाई करती है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, a ऑफ u प्लस v इक्वल टू a ऑफ u प्लस a ऑफ v, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो भी ये प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई करती है, ठीक है। हमने इसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक भी किया हुआ है, ठीक है। और कोई भी स्केलर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, वो पहले मल्टीप्लाई करें या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मल्टीप्लाई करें, फिर भी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, यानी ये बेसिक तरीका है। अच्छा, इफ़ अगर टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ज़ीरो पता है क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर 2t है तो 2 है, अगर 3 तो है 3 लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन को हम अगर और जो है दूसरी हमारे पास क्या है, ये देखिए दो वेक्टर्स हैं उसके अंदर दो स्केलर्स मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो आप सिंपली ये इस तरह भी कर सकते हैं, c को मल्टीप्लाई करवा दें ट्रांसफॉर्मेशन की u के साथ और d को मल्टीप्लाई करा दें ट्रांसफॉर्मेशन v के साथ, ठीक है। ये सब के लिए एप्लीकेबल है जो कि स्केलर्स और वेक्टर्स हमारे पास टी डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज। एक मरतबा फिर से देखते हैं, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग टी इज लीनियर इफ एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए टी यू प्लस वी इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन, ठीक है, ये सब के लिए यू वी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ वेक्टर्स सी एंड यू, सी इज एनी स्केलर एंड यू इज वेक्टर, so you can write this transformation of c increment of c times in u, or you can transform the u and then multiply with the c, it is the same thing, ठीक है। this is for all scalars u v in the domain of t। so we know that a given matrix A of order m by n, if any matrix has the order m by n, satisfies the following properties, all matrix satisfy the following properties if a of u of plus v, addition of vectors is equal to distributive just like a of u plus a of v, or and t c of u, transformation of c into u equal to c of t of u. Every matrix transformation is linear. Every matrix transformation is linear. Please note this. Every matrix transformation is linear. Transforming the matrix through the matrix dimensions is known as linear transformation. If T is a linear transformation, then T of 0 equal to 0. नल वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा नल वेक्टर आएगी, ठीक है। और ये सी यू प्लस डी वी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना चाहें कोई भी स्केलर, इसको यू से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ऐड करवा दें दूसरी स्केलर से डी से के साथ मल्टीप्लाई करा के वी को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें, तो भी आप जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सी टी ऑफ यू plus dt of u for all vectors of u v in the domain of t and scalar c d, ठीक है।
ये एक एग्जांपल है हमें, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट कि टी ऑफ 1 1 ये किसके बराबर है 205 के, और टी ऑफ 0 2 किसके बराबर है 1 2 1 के बराबर है। हमें कहा गया है फाइंड दी इमेज ऑफ 5 9, यानी 5 9 की इमेज जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको सिंपली क्या किया है, ठीक है, हमने देखा है कि हमने करना क्या है कि ये जो 5 9 है हमें इसकी जो है हमने इमेज फाइंड करनी है। तो हमने 5 9 को देखा डायरेक्टली, ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है हमें, देखें ठीक है, इसको देख लें, ये कुछ इस तरह शो हो रहा है हमें। ठीक है, ये कुछ इस तरह हो रहा है। अब इसको अगर मज़ीद हम देखना चाहें तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 बना, उसके बाद एडिशन करवाएं तो आप उसके बाद ये 0 8 बना। ठीक है, 0 8 बना, ठीक है 0 8 पर। तो सिंपली हमारे पास क्या आया, ठीक है 5 को 5 के साथ ऐड कराएंगे और जो है 5 को 4 के साथ ऐड कराएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह बन रहा है। ठीक है, 5 + 0 5 बनेगा, ये हमारे पास कुछ 5 + 4, ये हमारे पास 0 to 2 है, तो 0 to 8 8 + 5 + 8 ये बनेगा हमारे पास 13। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, उसको हम मज़ीद करते हैं कुछ इस तरह से। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे 1 1 मिली है 205 की तरह, यानी टी ऑफ 1 1 क्या है हमारे पास 205 है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और टी ऑफ 0 2 हमारे पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कुछ इसी ट्रांसफॉर्मेशन है। टी ऑफ 0 2 हमें 1 2 1 के बराबर है। हमें कहा गया है 5 9 की जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है आप, ठीक है, अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमने क्या किया है 5 9 की ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, ये 1 है 1 है, ये 0 2 है तो ये 0 2 है लिखा, हमने लिखा। अब इसको 5 9 किस तरह बनाए, 5 को मल्टीप्लाई कराएं 1 से, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कराएं 0 से 2 से, तो ये क्या बनता है 5 5 0 4, 5 + 5 5 5 + 0 5 5 + 4 9। ठीक है, ये कुछ इस तरह हमने वेरीफाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या किया है, हमने दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमने 5 9 की फाइंड की है कुछ इस तरह से। ट्रांसफॉर्म किया 1 1 को, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, 5 स्केलर मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ पे 2 स्केलर मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है, ये 5 स्केलर है, ये 2 स्केलर है। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्टली कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या कौन सी अप्लाई की है, ये दो प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, टी ऑफ सी एक्स इक्वल टू सी ऑफ टी एक्स, तो हमने सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म किया है 5 1 1 को। ठीक है, इसी तरह इसको हमने स्केलर को बाहर निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म किया। टी ऑफ 1 1 क्या है हमारे पास, टी ऑफ 1 1 205 है, 205, और टी ऑफ 0 2 क्या है हमारे पास 1 2 1 है। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये बना है 10। ठीक है, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 है, 10 + 2 0 पे 0 + 2 4 25 5 5 की 25 25 प्लस 2 × 2। ठीक है, इसको ऐड कराया 12 4 27। ठीक है, तो ये सिंपली हमने जो है ट्रांसफॉर्मेशन की है। ठीक है, इसको मज़ीद चेक कीजिएगा, ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसकी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी 5 9 की, 5 है ये 9 है।
ठीक है, ये कैसे हो रही है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 10 आ गया, 5 प्लस 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ गया। उसके साथ ऐड ये एडिशन की साइन, ये वाली एडिशन की साइन। उसके बाद 2 1 2 2 to the 4 2 1 2 ये ऐड किया, 10 प्लस 12 10 प्लस 2 12 0 प्लस 4 4 25 प्लस 2 27। तो ये हमने टी ऑफ 59 की इमेज फाइंड कर ली है। वो क्या बन रही है, 12 4 27। ठीक है, उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्दर अगर कुछ भी क्यूरी है इंशाल्लाह लाइव क्लास में रिजॉल्व की जाएगी। एक प्रॉब्लम है, हमें x गिवन है x1 x2, x हमारे पास क्या है x1 x2 और t हमारे पास क्या हो रही है, 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। यानी डायमेंशन हमारे पास सेव है, x1 और x2 से ट्रांसफॉर्म हो रही है x1 x2 में 2D में। ठीक है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स x into x1u plus x2v। लीनियर कॉम्बिनेशन हो रही है u और v की। ठीक है, where u equal to -3 5 and v equal to 7 -2। दो वेक्टर हैं u और v। ठीक है, आपको कहा क्या गया है, a मैट्रिक्स लइए, फाइंड कीजिएगा सच दैट t of x equal to ax। ये प्रॉपर्टी भी आपको सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, अब देखें इसको हमने किस तरह सॉल्व किया है। हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी 2D में हो रही है, सो t of x1 x2। ठीक है, इसको हमने मजीद एक्सपेंड किया, ये हमारे पास -3 5 प्लस -7 2, ये हमारे u वेक्टर, ये हमारा v वेक्टर। इसको मजीद हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये आया। ठीक है, अब इससे अंदाजा लगाइए कि आपके पास a मैट्रिक्स कैसी बननी चाहिए, वो कुछ इस तरह आएगी, इनके कोएफिशिएंट्स आएंगे -3 5 -7 -2। ठीक है, x हमारे पास, इसको हमने अगर अलग किया तो वो क्या बना, x हमारे पास x1 x2 बना। ठीक है, तो हम इसको मजीद इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3 x1 + 7 x2 5 x1 -2 x2। ठीक है, अब देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है t of x ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इक्वल टू ax। a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, जो कि हमने ये किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हमने पढ़ा था x1 v1 + x2 v2 अप टू xn vn इक्वल टू b। ये किसके बराबर होता है, ये टोटल होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ हमारे पास इस तरह डिफाइन होता है। ये देखें, लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने b के बराबर किया है, लीनियर कॉम्बिनेशन x के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स को है ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दी है। सो हमारे पास सिंपली a जो मैट्रिक्स a आई वो सिंपली ये आई, और पूरी प्रॉपर्टीज हमने इसमें वेरीफाई कर दी है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, आपको x1 और x2 जो है वो जो है लेट किए गए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन तक है। ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x मैप कर रहा है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है x1u + x2v लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका u की वैल्यू क्या है -3 5 और v की वैल्यू क्या है 7 -2। आपसे कहा गया है मैट्रिक्स a फाइंड कीजिएगा सच दैट ये जो हमारे पास लीनियर जो है t of x ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, फॉर ईच x, हर x के लिए। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड की x1 x2 की, किस तरह से x1 को हमने मल्टीप्लाई कराया किससे, u से, और ये कौन सी फॉर्म लिखी है हमने, ये सिंपली ये वाली फॉर्म लिखी है हमने x1u + x2v, ये वाली फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कुछ आया, इसको मजीद हमने एक्सपेंड करके लिखा। ठीक है, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3 x1 + 7 x2। ठीक है, -7 x2 यहाँ पे माइनस है, -7 x2 -2 x2 5 x1। ठीक है, इसको मजीद हमने a की वैल्यू इस तरह फाइंड की। अब देखिए ये किस तरह फाइंड की है, तो हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इक्वल टू ax। ठीक है, अगर, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, जो वेक्टर्स स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। और हमें पता है ax हमारे पास किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये tx है, tx होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन
को देखिएगा, कोई भी हमारे पास स्केलर है आर, ठीक है, कोई भी स्केलर क्या है, आर है, द मैपिंग टी एक सेम डायमेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है डिफाइंड बाय, यानी उस हमारे पास x जो है उसको r टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मैपिंग जो है उसको, मैपिंग जो है आपकी आएगी वो, तो या फिर हमारे पास अगर r जो है उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, r की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वो डायलेशन होगी। सिंपली ये एक ग्राफ है, ठीक है, अगर r इज लेस देन एंड इक्वल टू, r की वैल्यू 0 लेस देन एंड इक्वल टू r 1 के बराबर होगी तो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर r की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो आपकी कुछ वैल्यू इस तरह होगी, ठीक है। इसका मजीद मैं एग्जांपल देखता हूँ, अगर कोई भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, सपोज कर लें v जो है हमारे पास 10 है, ये क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अगर हम इसकी जो है कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन अगर देखना चाहें, अगर कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होगी टी ऑफ एक्स, यानी अगर हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, ठीक है, तो आपके पास 5 आ गई, ठीक है। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहें, अगर r लेट सपोज r इक्वल टू हमारे पास ग्रेटर देन 1 है यानी 20 कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास किस तरह आएगा, r मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आएगा आपका 200 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये आपकी सिंपली कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन है। एक प्रॉब्लम गिवन है हमें, ये R2 की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में ही करनी है, ठीक है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 0 -1 1 0, ठीक है। जो -1 है ये देखें 0 1, 0 से लेके 1 तक है, 0 1 और -1 0 -1 0, ठीक है। तो अब x1 x2 है तो इसकी क्या आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, जो -x जहाँ -x2 है, ठीक है, सॉरी, तो ये कुछ -x2 अपॉन x1 ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कुछ इस तरह आ रही है, ठीक है। तो आपसे कहा गया है आपने जो इमेज है t की, ठीक है, वो फाइंड करनी है। u आपके पास है 4 1, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 1, ठीक है, और जो है u जो है 1 वेरिएबल तक है, ठीक है, और v जो है आपके पास 2 3 है, 2 3 यानी 1 2 1 2 3, ये 2 3, ये v पॉइंट, ये u पॉइंट, ठीक है। आप और आपसे u प्लस v क्या है वो कुछ इस तरह बन रही है, u प्लस v, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस तरह बनेगी, उसकी अपोजिट, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ किया है, u और v को ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, और ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये जो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने आज पढ़ी है। उम्मीद है आपको जो है इस सिलसिले में मजीद समझ में आया होगा। अगर फर्दर जो क्यूरीज है आपकी, जो कुछ नहीं समझ में आया, इंशाल्लाह आपकी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।